ગિરનારની સિદ્ધ ભૂમિમાં એક એવા સંતના દર્શન આપણે કરવાના છીએ જેમની પાસે બે વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે। ભવનાથ તળેટીમાં જંગલમાં એક શાંત જગ્યાએ બાપુનો આશ્રમ આવેલો છે। ક્યાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે, કેવી રીતે મેળવેલા છે, તે મેળવવા કેવી મહેનત અને કયો ઉદ્દેશ્યથી તેમણે એ વર્લ્ડ રેકોર્ડ મેળવ્યા છે, એ આપણે બધું જ જોવાના છીએ આ વિડીયોમાં। પણ એક વસ્તુ તો ખરી કે આવા વર્લ્ડ રેકોર્ડ બાપુ પાસે હોવા છતાં એકદમ નિર્મળ સ્વભાવ અને પ્રકૃતિના ખોળામાં બાપુ કરે છે ભજન। એવામાં જ સત્સંગ કરતાં કરતાં આપણે ભવનાથ તળેટીમાં પહોંચી ગયા અને ભવનાથના દ્વાર પહેલાં જ આ બાપુનો આશ્રમ જવાનો રસ્તો આવે છે। આ કેડીના માધ્યમથી આપણે એ જગ્યાએ પહોંચી શકીએ છીએ। જય ગિરનારી મિત્રો, ફરીથી ગિરનારના જંગલમાં ફરતા ફરતા એક એવા મહાત્માનો આશ્રમે આપણે પહોંચ્યા છીએ। રસ્તો તમે જોયો, એ મહાત્મા યોગ કરીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ મેળવેલા છે અને એ પણ ગિરનારના સાનિધ્યમાં બાપુ બિરાજમાન છે। રસ્તો તમે જોયો એ પ્રમાણે ભવનાથથી એકદમ નજીક જ આવેલો છે। બાકી ડિટેલ બધી નીચે મૂકી દઈશ। અને અહીંયા એક મહાત્મા, ટૂંકમાં જે કહેવાય કે મહાદેવનું મંદિર છે, સાથે નાના મોટા મંદિર છે અને એ મહારાજજી જે છે એમના ગુરુજીનો ધૂણો છે, આશ્રમ છે, ઘણું બધું છે। તો ચાલો જઈએ, દર્શન કરાવવું એ શ્રી પ્રગટેશ્વર મહાદેવ મંદિર। હાલ આપણે આ રસ્તેથી આવ્યા, આખું આ ભવનાથ ક્ષેત્ર જ છે। ભવનાથ ક્ષેત્રની છેલ્લી જગ્યા કહેવાય, કેમ કે આની પછી સીધું જંગલ જ ચાલુ થઈ જાય છે। છેલ્લી જગ્યા છે ત્યાં છે શ્રી પ્રગટેશ્વર મહાદેવ મંદિર। ત્યાં બિરલાદાસ નામના બાપુ નામના એક એવા મહાત્મા જે છે જેને અહીંયા ભજન કર્યું છે અને એ ભજન યોગ દ્વારા ભજન કરેલું છે અને એનું ભજન આપણે જોવાના છે। એની પહેલાં તમને અહીંયા જે મંદિરો છે એના દર્શન કરાવું। તો પ્રથમ જ મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે ડાબી બાજુએ એક નાનું એવું હનુમાનજી મહારાજનું, વાહ, નાનું એવું તો નહીં પણ હનુમાનજી મહારાજ એક ઓછામાં ઓછા 3.5-4 ફૂટની મૂર્તિવાળા બિરાજમાન છે અને આ ઉદાસીન અખાડાની જૂની જગ્યા છે। એટલે કહેવાય કે રામાનંદીને ટૂંકમાં આ બે કહેવાય ને રામદળ જે કહેવાય એ આ રામદળની ટૂંકમાં જગ્યા છે। હનુમાનજી મહારાજનું પ્રથમ મંદિર છે। પછી સામે છે ભૈરવ દાદાનું સ્થાન। આખું જંગલમાં જ આવેલું છે, આખું જે કહેવાય કે પ્રકૃતિના ખોળામાં એકદમ ગિરનારના સાનિધ્યમાં ભવનાથ તળેટીમાં સામે તમે ગિરનારી આછો જોઈ શકો છો। એટલે ગિરનારના સાનિધ્યમાં બે વર્લ્ડ રેકોર્ડ મેળવેલા સિદ્ધ મહાત્મા ભજન કરે છે। અત્યારે એ ભૈરવ દાદાના સ્થાનના દર્શન કરી રહ્યા છો। અહીંયા ભૈરવ દાદાનું ત્રિશૂલ ને ભૈરવ દાદાનું સ્થાન। હવે આપણે જઈએ ઉપરની સાઈડ શ્રી પ્રગટેશ્વર મહાદેવ મંદિર જે છે એના દર્શન કરવા માટે। અત્યારે આપણે એ પ્રગટેશ્વર મહાદેવ મંદિર જે કહેવાય અંદાજે 80થી 90 વર્ષ, 100 વર્ષ પણ કહી શકાય એવું જૂનું અને જે હાલ જે મહાત્મા છે બિરલાદાસ મહારાજજી એમના ગુરુ દ્વારા સ્થાપિત આ નર્મદેશ્વર શિવલિંગ વાળું શ્રી પ્રગટેશ્વર મહાદેવના તમે દર્શન કરી રહ્યા છો। વિશાળ કહેવાય કે સર્પ દેવતા અને શિવલિંગ પણ ખૂબ જ વિશાળ એવી, પાછળ માતાજીનું સ્થાન, આ બાજુ માતાજીનું સ્થાન, નંદીજી, કાચબાજી, ગણપતિજી, હનુમાનજી અને વિશાળ ત્રિશૂળ સાથે આ પ્રગટેશ્વર મહાદેવના મંદિરના દર્શન। બાજુમાં અહીંયા હનુમાનજી મહારાજનું પણ નાનું સ્થાન છે અને પાછળની સાઈડ જે હાલ જે મહાત્મા છે એમના ગુરુજીનું સ્થાન છે। આખો આશ્રમ છે, વિશાળ એવો આશ્રમ, ત્યાં પણ ઘણું બધું છે એ તમને દેખાડું। એની પહેલાં અહીંયા પરમ પૂજ્ય ઉદાસીન સંત શ્રી બનારસીદાસ બાપુની સમાધિ છે, તો એ સમાધિના તમે દર્શન કરાવું। વાહ, મથા ટેક હર ભોલે। અહીંયા સંત શિરોમણી શ્રી 1008 શ્રી બાબા સેવા મુનિ એટલે કે બનારસીદાસ બાપુજીની ગુરુ શ્રી રામદાસજી ઉદાસીન અખાડાના મહાત્માની આ તમે સમાધિ સ્થાન એટલે કે સમાધિના દર્શન કરી રહ્યા છો। વાહ, મથા ટેક। અને આજે બાપુનું જે ભજન જ્યાં હતું એટલે કે જ્યાં એમનો ધૂણો છે, પ્રાચીન ધૂણા સાહેબ તપસ્થાન શ્રી 1008 પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી બનારસીદાસ બાપુ સેવા મુનિ એમનો અહીંયા ખૂબ જ જૂનો ધૂણો પણ છે। ધૂણા સાહેબ પણ કહેવાય। વિક્રમ સંવત 1993 એટલે અંદાજિત ગણો ને તો 80 વર્ષ જૂનો આ ધૂણો છે। પાછળ આખું શ્રી ચંદ્ર દેવતાનો ફોટોગ્રાફી દર્શન સાથે બધી ડિટેલ લખેલી છે। અને આ જે બોર્ડર છે એ બોર્ડર પૂરી થાય એટલે ગિરનાર રેવન્યુ વિસ્તાર જે કહેવાય એ આખો રેવન્યુ વિસ્તાર સ્ટાર્ટ થઈ જાય।
અહીંયા કંઈ ભંડારની વ્યવસ્થા છે, અહીંયા બાપુનો આશ્રમ છે. ત્યારે આપણે હવે આશ્રમની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. અહીંયા એક ઉદાસીન અખાડાના મહાત્મા બિરાજમાન છે. અને અહીંયા પણ એક ધૂણો છે, જે પણ અત્યારે હાલ જે મહાત્મા છે એમના ગુરુજી દ્વારા સ્થાપિત ધૂણો છે સ્થાપેલો. અહીંયા ઘણા બધા ફોટારૂપી દર્શન રાખેલા છે. વાહ. અને અહીંયા શ્રી 1008 શ્રી શ્રી ચંદ્ર દેવતાની મૂર્તિરૂપી દર્શન રાખેલા છે. આ ઉદાસીન અખાડાના મેઇન જે ગુરુ કહેવાય, મેઇન જે ભગવાન કહેવાય એવા શ્રી ઓમ શ્રી 1008 શ્રી ચંદ્ર દેવતાનું મૂર્તિરૂપી દર્શન છે. અહીંયા પણ એક વિશાળ એવો ફોટો રાખેલો છે પરમ પૂજ્ય ઉદાસીન બનારસીદાસ બાપુ, જે કહેવાય કે આ જગ્યાને સ્થાપિત કરીને ભજન જેમણે આ જગ્યા ઉપર કર્યું છે, એમના શિષ્ય જે છે એમની પાસે 2 વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. તો હવે એમની પાસે જઈએ. અહીંયા જૂના ફોટારૂપી દર્શનને ઘણું બધું છે. વાહ. તમે એ રૂમની અંદર આપણે છીએ, બાપુના રૂમની અંદર. અને અહીંયા લોંગેસ્ટ ટાઈમ ટુ પરફોર્મ પદ્માસન યોગા એન્ડ લોંગેસ્ટ ટાઈમ ટુ પરફોર્મ શીર્ષાસન ક્રોસ લેજન્ડ ઇન્ડોર હેડ સેડ યોગાના એક સર્ટિફિકેટ છે. વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઇન્ડિયા દ્વારા આ પ્રમાણિત સર્ટિફિકેટ તમે જોઈ રહ્યા છો. એટલે આ ભવનાથ સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં એક પણ મહાત્મા, એક એવા મહાત્મા જેમની પાસે વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોય એવા બાપુના સાધુના આપણે દર્શન કરવાના છીએ. સાથે સાથે એમની પાસે ઘણું બધું છે જ્ઞાન, એ આપણે લેવાના. આ જે મહાત્મા છે શ્રી શ્રી 1008 પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ બનારસીદાસ બાપુ, સેવા મુનિજી બાપુ જે કહેવાય, એમના શિષ્ય દ્વારા આપણે ઘણું બધું જે વર્લ્ડ રેકોર્ડ મેળવેલ છે એમનું આપણે જાણવાના છીએ. અને આ જગ્યાને જેને સ્થાપના કરી એવા બાપુનો ફોટો સાથે સર્ટિફિકેટ ઓફ અચીવમેન્ટ. ધીસ ઇઝ ધ સર્ટિફાઈડ ધેટ બિરલાદાસ બાપુ ડિક્લેર એઝ અ વિનર ઓફ GIAA 2020-21 એવોર્ડ ઇન ધ કેટેગરી ઓફ જુનાગઢ. એ મહાત્માનું એક આખું સર્ટિફિકેટ છે. અને આ છે એ પંચાયતી અખાડા બડા ઉદાસી નિર્વાણ અખાડાનું એક પ્રમાણપત્ર રાખેલું છે. અને સાથે બાપુની એક ટ્રોફી પણ રાખેલી છે, જેની પણ આપણે આગળ વિશેષ વાતો કરશું બાપુ સાથે. જય ગિરનારી મિત્રો, હાલ આપણે છીએ ભવનાથ સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં એક એવા મહાત્મા સાથે જેમની પાસે 2 વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. અને એમના ગુરુજી વિશે, આશ્રમ વિશે અને ઘણા બધા સંવાદો આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે. તો હાલ છીએ આપણે આ મહાત્મા પાસે અને એમની પાસેથી જ આપણે આખું માહિતી લઈએ. महाराज जी, पहले तो आपका नाम बताइए. मेरा नाम है बिरला दास. आपका गुरुजी का नाम? ये मेरा गुरु आश्रम है. मेरे गुरु महाराज है बाबा बनारसी दास जी. इधर भावनाथ में 90 साल से उनका दूना है. अब उनके बाद जो है मैं हूँ इधर. पहले मेरे बड़े गुरु भाई से मोनी बाबा, अब उनके बाद मैं हूँ इधर आया. और ये जो आश्रम है वो कितने सालों से होगा? ये धूने के बारे में मंदिर, जो महादेव का मंदिर है वो? ये आश्रम कम से कम 91 साल से होगा. 90 साल से. हाँ. और आप यहाँ पे कितने सालों से? मैं तो इधर से बचपन से आता हूँ. 1976 से. 1976 से? हाँ, जब से मेरे गुरु महाराज थे. जी महाराज जी. वो पहले इधर थे, फिर 81 में वो देव हो गए जी. फिर उसके बाद जो है मैं इधर उधर भटकता रहा. मेरे बड़े गुरु भाई ने संभाल लिया जी. तो बढ़िया उसने संभाला, काफ़ी तरक्की की. उनके फिर देव होने के बाद इस जगह की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ. वैसे मेरा जन्म स्थान पंजाब है, लेकिन गुरु स्थान ये भावनाथ में प्रकृष्ण महादेव. वाह, बढ़िया. गिरनार क्षेत्र में आप कई सालों से, तो गिरनार क्षेत्र की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसके बारे में कुछ बताइए, जो लोगों को भवनाथ और गिरनार की ओर आकर्षित करता है. देखो, जैसे रामायण में आता है कि जहाँ पे काकभुसुंडी जी का वास है, वहाँ से वो नील पर्वत है जी. और नील पर्वत के कई कई योजन पे पाप भटक ना सके जी. ऐसे ये हमारी गिरनार की भूमि है जी. यहाँ पे भी जो है पाप जल्दी इसके नज़दीक नहीं आए. जितनी देर जीव इधर रहे, धार्मिक प्रवृत्ति में भी रहे. जी. क्यों? जैसे मैंने सुना है कि एक नदी का जिक्र आता है गरुड़ पुराण में. बैतरनी नदी है उसका नाम, जो स्वर्ग में है. आज से प्राचीन काल पहले वो नदी
गिरनार में बहती थी। गिरनार में बहती थी। गिरनार में बहती थी। जब ये कलयुग का आगमन हुआ तो ये नदी जो है स्वर्ग में चली गई और ये भूमि जो है 800,000 तो सरकार की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन में है। जो सींग है, दीपड़ा है, ऐसे ही हमारे भी इधर सींग, दीपड़ा, नीलगाय, बारहसिंगा, मोर, ऐसे पंछी जीव सब आवे जंगल में। गिरनार ये पूरा जंगल में ही आपका आश्रम है, तो ये सभी आते रहते हैं। हमें ना इनका घर है, हम तो इनके घर में बैठे हैं। और महात्मा जी, आप योग और जो आपको जो सर्टिफिकेट मिले हैं या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला है, वो जो है वो कैसे मिला? और इसकी जो है हमने सर्टिफिकेट तो देखा ही है, लेकिन उसमें दो उपलब्धि है। एक तो आपका जो आसन है वो, और दूसरा जो आप शीर्षासन करके है, उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसे है कि ये चीज़ें बचपन से ही हम लोगों को गुरु लोगों ने बख्शी हुए। ये हमारे पास तो जो है बचपन से ही इन चीज़ों का अभ्यास था, लेकिन ये चीज़ें जो है समाज में गुप्त थी। जी महाराज जी। क्योंकि ये ऋषि मुनियों की परंपराएं थी। जी महाराज जी। जिसको आकर अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर किया और पूरे विश्व के 200-250 देशों में इसको फैलाया, जिसकी वजह से आजकल तो सरकार ने योग को गेम में लिया हुआ है। जी। सरकार ने योग को गेम में लिया हुआ है और मैं भी बच्चों से यही कहता हूँ कि तुम्हें जो है नशे पानी की तरफ मत ध्यान दो, योग की तरफ ध्यान दो, क्योंकि सुडौल और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हमारे जो है युवा पीढ़ी ही कर सकती है। जी महाराज जी। इसमें 2 सर्टिफिकेट है। पहला सर्टिफिकेट किसके लिए मिला और दूसरा किसके लिए, वो भी लोगों को बताइए महाराज जी। ऐसे है कि इन चीज़ों से तो हम परे थे जी, लेकिन और इन चीज़ों का कोई संसार में इतना बोलबाला भी नहीं था। इन सब का श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को ही जाता है, वाह। जो इन्होंने इसको चालू किया। तो मेरे को भी बच्चों ने बोला, बाबा ये है तुम्हें योग का दो कुछ, तो फिर मैंने जो है एक दिया, वो फिर मेरा जो है टूट गया। फिर मैंने अब इधर भावनाथ में 2 गोल्ड मेडल लिए। एक तो पद्मासन में लिया, पद्मासन में, और दूसरा जो है मेरे को पद्मासन प्लस शीर्षासन के साथ पद्मासन। वो कितने टाइम का होगा? वो 1,03 का था। 1 घंटा और 3 मिनट जो शीर्षासन और साथ में पद्मासन वाला, और सिर्फ पद्मासन वाला जो रिकॉर्ड है वो था 2,42-43 मिनट का। 2.25 घंटे का वो एक ही आसन में। वो भी पद्मासन जैसे कठिन आसन, जो लोग सामान्य लोग 2-3 मिनट 5 मिनट बैठ कर थक जाते, उसमें आपने 3.25 घंटे लगाए। वो महाराज जी प्रैक्टिस से हुआ या गुरु महाराज के आशीर्वाद से, या फिर? ये सब गुरु लोगों के जो है आशीर्वादों में। और आपके गुरुजी भी ये आसन और सब योग करते ये सब उन्हीं लोगों के द्वारा आई हुई विद्या है ना। जी महाराज जी। हर साधु को उसके गुरु ने अलग अलग विद्या दी होती है। जी महाराज जी। जो जिसको जैसी विद्या वो उसके गुरु लोग प्रदान करें, ऐसे जीवन में उसने उसी नक्शे कदम पे चलना होगा। जी महाराज जी। ऐसे जो हमारे गुरु लोगों ने हमको दी थी जी, वो दिखाने के लायक चीज़ तो नहीं थी समाज में जी, लेकिन कुछ हालात ही इधर ऐसे बन गए, कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हमारे सामने पेश आए कि हमको वो चीज़ें उजागर करनी पड़ी, जबकि ये सब चीज़ें तो गुप्त हैं। जी। हमने तो कभी बचपन से जवानी तक, जवानी के बाद भी किसी को पता तक नहीं लगने दिया था। आप योग करते कहाँ थे पहले? योग करते थे जो है जिधर भी करने का योग, कहीं योग भी? पंजाब में, मथुरा में, इधर अपने मेरे बड़े गुरु भाई हैं नौमी दास जी। वैसे आप सुबह करते थे या पूरे दिन में कोई ऐसा कोई फिक्स टाइम रहता था कि? फिक्स टाइम यही है कि सुबह को जो है नहा धो के, कोई ये नहीं है
कि मैं तुमको झूठ बोल दूँ कि मैं 4 बजे ही उठ के जो है 5 बजे ही उठ के, ऐसा नहीं है अपना। क्यों? ये ऐसे योग हैं जिनको करने के बाद मुड़ के सारा दिन जो है 2-2, 4-4, 5-5 घंटे परमानेंट रिलैक्स चाहिए। क्यों? शरीर का, दिमाग का सारा खून जो है उल्ट पुल्ट हो जाए। शीर्षासन में तो होता है और ये दोनों इसी कांड के ही हैं जी। और जो सारा खून जो आ जाए उसको जो है फिर नॉर्मल होने में भी कुछ समय लगे, रेगुलर होने में। हाँ, रेगुलर होने में भी उसको समय लगे और उसके बाद उसकी थकावट उतारने को भी समय लगे। तो आप जब ऐसे रिकॉर्ड के पहले ऐसे ही करते थे तब कितने टाइम तक करते थे? अब 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा ऐसा? ना हमारी तो उस वक्त भी जो है 40-50 मिनट से ऊपर की प्रैक्टिस थी रेगुलर इसकी 40-50 भी। मिनट वो तो हमारा डेली कंटिन्यूस था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना 1 दिन या 2 दिन या साल या 2 साल का कार्य नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में पूरा यहाँ लाने में जीवन का एक हिस्सा चला जावे, वो भी बड़ा वाला हिस्सा जीवन का जो है चला जावे। ये कोई महीने, 2 महीने, 4 महीने या साल की प्रैक्टिस से नहीं होता, से नहीं होने वाले काम। वाह महाराज। और आपके जो गुरुजी थे वो और सब गुरु भाई साथ में मिलकर योग करते थे या फिर नहीं, इलादा थी सबको विद्या। जैसा बालक था वैसी विद्या गुरु महाराज ने उसको प्रदान की हुई थी। तो आप में पहले से ही वो क्वालिटी रहेगी ना महाराज जी की? ये गुरु लोगों को मालूम होवे जी। क्योंकि मैं जब इधर आया तो उस वक्त भी हम तगड़े से पढ़े लिखे थे और साथ में हमको शौक था दंड बैठक लगाने का। दंड बैठक भी लगाते थे? अब खूब लगाते थे, अखाड़े में भी जाते थे। वाह। अब आप महाराज जी आपकी उम्र कितनी होगी अभी? हमारी उम्र 70 साल हुई है अभी। 70 साल हुई है, फिर भी अभी आप वो जो शीर्षासन और सभी आसन रेगुलर करते हैं महाराज जी? वो तो करने पड़े ना करें तो बीमार हो जाए। जी, सही बात है। वो शरीर का खुराक है। खुराक अभी भी वो, अभी आप बता रहे थे ऑफ कैमरा, जब कैमरा नहीं स्टार्ट हुआ था, कि वो जो रिकॉर्ड आपने बनाए वो भी आप तोड़ना चाहते हैं, तो उसकी क्या महाराज जी तैयारी होगी अभी? उसका ये था कि अभी मेरे को पता लगा था कि अभी ये दोनों रिकॉर्ड टूटे नहीं हैं, अभी तक नहीं टूटे। कब मिले थे महाराज जी? वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये कोई 2021 में 21 में, अभी 3 साल होने वाले हैं। 3 साल होने वाले हैं। 3 साल से आपका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। तो अब मेरी ये है कि इन रिकॉर्डों को इस साल मैं कोशिश करूं कि इनको दोबारा तोड़ दूं, मैं ही तोड़ दूं। वाह, बढ़िया। अब आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड कितने मिनट का होना कर सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं? अब कहाँ तक ये है कि तोड़ने में तो देख जी, ये जितनी भी है ना चीज़ें, ये सब है हीट की। इनमें एक सेकंड जो है कि नहीं बहुत भारी पड़ जावे जी। मिनट की तो बात छोड़ो, एक सेकंड भी भारी पड़ती है, बहुत भारी पड़ जावे। यही एक जो है पद्मासन उसका सोचूंगा कि आधा पौना घंटा ज़्यादा और इसको करूं तोड़ने के लिए, उसका है। उसमें भी कोशिश करूंगा कि 8-10 मिनट ज़्यादा तोड़ूं। शीर्षासन में, शीर्षासन और पद्मासन दोनों में 8-10 मिनट का एक्सटेंशन करूं। वो भी 70 साल में आप अभी ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार किसी ने रिकॉर्ड बना दिया तो वो ऐसा सोच रहा है कि हमारा नाम आ गया तो हम ठीक है, लेकिन आप तो पहले से ही योग करते थे, रिकॉर्ड बनाने के लिए तो करते ही नहीं थे। रिकॉर्ड का तो काम ही कोई नहीं ना। ये तो तुमको बोला कि अभी 8-10 साल के काम हुए, और ये चीज़ें रेगुलर कोर्स ऑफ एक्सरसाइज जी। जब तुम करोगे नहीं, पीछे कोई होगा नहीं, गुरु लोगों का आशीर्वाद नहीं होगा जी, तो ये काम पूर्ण होने वाले नहीं है संसार में। इसलिए जो सामान्य जो लोग हैं जो योग के बारे में जानना चाहते हैं या फिर योग करना चाहते हैं, तो उसको ये अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। उसके बारे में क्या करना, सामान्य लोगों को योग में आना हो तो उसके बारे में बेसिक्स क्या है? देखो पता क्या है, जो सामान्य जो युवा पुरुष है जी, युवा पुरुष के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि वो बोले ना कि भूखा नंगा रोगी क्या बनेगा योगी जी। और जो आगे हमारी जो ओल्ड एज पीढ़ी चल रही है 50-60-70 साल ऊपर जी, और जहाँ जहाँ पे भी हमारे सारे भारत में क्लासें लगे योग की जी, उनमें रोगियों बैठे हुए, जबकि योग में रोग का कोई काम ही नहीं है। क्यों?
योग भी उन लोगों ने पहले तो किया नहीं, जी अब योग भी कई रोगों को निवृत्त करता है। जी तो फिर जो साधना वाला होवे तो वो उसके पास जाए तो वो बोले तुम्हें इस आसन में बैठो तो तुम्हें तुम्हारे योग से रोग से थोड़ी बहुत ही निवृत्ति मिलेगी। इसलिए लोगों को योग की ओर जाना चाहिए, बोले थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत, लेकिन करना चाहिए शरीर की। देखो हर आदमी को अपने शरीर का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, और कोई नहीं रखेगा। कोई PSI तो रखने वाला है नहीं, नहीं उसकी सेहत का नहीं, ख्याल, नहीं। वो उसको खुद ही रखना पड़ेगा जीवन अगर उसको जीवन में सुख शांति से घूमना है तो। क्यों इस संसार में लोग क्या करते हैं कि रोग के डर से दवा भोजन तक छोड़ देते हैं, जी रोग के डर से भोजन तक छोड़ देते हैं डॉक्टर बोले तो, जी लेकिन मृत्यु के डर से कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे। समझे? जी और ये सब प्रकृति है, जी प्रकृति जीव के अंग संग घूमे, जी हमको पता ही ना चले, प्रकृति अपना कार्य करके चली जाए। जैसे तुम्हें देख लो, तुम हो जी या मैं हूँ, जी हम सब अपने माँ बाप के इतने नन्हे नन्हे ही पैदा हुए, सभी इतने ही थे। और माँ बाप ने हमको साथ में सुला के खिला के अपने जितना बड़ा कर लिया। बड़ा कर दिया। लेकिन इस संसार में किसी का माँ बाप ये थोड़ी बता सकता कि हमारा लड़का पूर्णिमा को बड़ा हुआ थोड़ा सा या 15 अगस्त को बड़ा जी, हुआ जी, थोड़ा सा। जी ये क्या है? ये प्रकृति है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता ये है, चक्कर पता ना चले, पता ना चले। प्रकृति बढ़ती जावे, जी। अपना काम करती जावे, जीव को पता नहीं चले। जी। और ये योग और भगवान दोनों का क्या कनेक्शन है महाराज जी, वो भी थोड़ा बताइए। देखो पता क्या है, जैसे बोले ना कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, जी धरती है, आकाश है, पानी है, हवा हवा है, है, जल है, जल है। और ये तीनों पांचों चीजों ही हमारे अंदर घूमती हैं। जी जैसे पृथ्वी रूपी शरीर है, जी सिर रूपी आकाश है, जी हैं? अब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है इसका पानी खत्म हो गया, जी इसको ग्लूकोज लगाओ भाई, जी हैं? अब उससे मुक्ति मिलती है, डॉक्टर बोलता है इसके पित्ते में गर्मी पड़ गई है, ये अग्नि तत्व बढ़ गया है, जी इसका कुछ सोचो। जी अब उस रोग से निवृत्ति होती है तो डॉक्टर बोलता है इसका दूसरा। श्वास ठीक नहीं चल रहा, इसका हवा तत्व बिगड़ गया। जी। ये जो तत्व बाहर है वही शरीर के अंदर भी है। 5 तत्व तो है ही शरीर में, इसी से ही शरीर बना हुआ है। इसी से बना हुआ है और इसी का ही सारा उपचार करना होवे। तो योग से ये 5 तत्व बैलेंस होते हैं। बैलेंस तो नहीं होवे जी। इस संसार में, 3 गुण ना बैलेंस होवे। बैलेंस नहीं होते। बैलेंस देखो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण संसार में घटते बढ़ते ही रहते हैं। बैलेंस हो जाए तो पृथ्वी का चक्कर रुक जाए। इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही रहते ऊपर हैं। नीचे जो है अरे में। अभी महाराज जी आप योग करते हैं तो आपकी इतनी फिजिकल फिटनेस कैसी रहती है वो भी बता दीजिए। अभी आपको कोई ऐसी बीमारी छोटी मोटी ऐसा कुछ रहता है? नहीं, अभी तो नहीं है कोई भी बीमारी। 17 सालों में कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई भी बीमारी। एक भी बीमारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं ना। हाँ, बीमार बुखार बुखूर तो सबको वो तो चल रहता है, जाए, वो तो है, लेकिन उसमें तुरंत रिकवरी तुरंत ना हो ना जाती है। वो नहीं, 1-2 दिन बीमार हो गए बुखार बुखूर में, वो भी तब भी योग तो स्टार्ट ही रहता है। वो तो फिर ऐसे ही है ना। हाँ महाराज जी, और गिरनार के सानिध्य में कई सालों से रहते हैं, तो गिरनार के कोई ऐसा अनुभव या फिर योग और गिरनार का कोई कनेक्शन हो वो बताइए महाराज जी। एक शेर है पुराना, पता नहीं ये हमारे त्रिलोकीनाथ बापू जी का है कि गिरनारी के गुण का कहाँ तक करूं बखान। वाह महाराज जी वाह। गिरनारी के गुण का कहाँ तक करूं बखान, 9 नाथ सिर 84 बसे जहाँ निर्वाण। वाह बे वाह, वाह गिरनारी वाह। तो वो जो नवनाथ जी थे वो बाद में आए, तो वो भी एक योग में ही रहते थे। हाँ, तो योगी पुरुष है ना, इसीलिए योगी पुरुष इसी कहते थे। पुरुष है। अभी यही नाथों को आगे योगी लगाते हैं। हाँ। तो वो योग वो अलग अलग योग पुरुष है ना। हम्म, फिर ये गिरनार की धरती हो ऐसी है, जी
यहाँ पे साधु कुछ ना करे, सेवा भाव ही करता जाए तो 12 साल में वो सिद्धा। वाह महाराज जी वाह। सिर्फ 12 उसके साल, रहने का ही प्रमाण इतना है। 12 साल रह गया तो वो सिद्ध है। आपको बोला ना कि पहले बतरनी नदी गिरनार में बहती जी, जी, थी, जी। अब गई कहीं स्वर्ग में। और भी कुछ गिरनार में होगा अभी भी, अभी कुछ हो ऐसा कुछ तत्व जो साधु संतों को और सामान्य लोगों को खींचता हो। दत्त भगवान बैठे हैं, जी हमारे साधु समाज इधर बैठे हैं, जी। एक से एक साधु बैठे हैं। जी ये जैसे अपने शेरनाथ बापू लगा जी। रहे, हरिहरानंद बापू जी। लगा रहे, इंदर भारती बाबा जी जी। लगा रहे हैं। ये इन लोगों की, इनके गुरु लोगों की यहाँ पे इतनी तपस्या है, ऊपर से दत्त भगवान का आशीर्वाद है, तो जनता अपना कल्याण करने के लिए गिरनार में आवे ना, कि भाई हम जो है समाज में हमको तराश मिल रही है, ठंडक मिलती तो गिरनार में है। मिलती है, वो तो सही बात है महाराज जी, वो तो फिर- मैं अनुभव किया हुआ है सभी का। जो भी तुम्हारी तरह ये जीव भी यहाँ पे आवे, आके साधु संतों के दर्शन करें, जी तो जो है उनको भी शांति ठंडक मिले। मिले। शांति मिले, ठंडक मिले। हाँ, लेकिन अभी तो क्या है कि यहाँ गिरनार में और बाहर, जैसे गिरनार में आते हैं तो सभी बाहर की चीज़ भूल ही जाते हैं। ये जो ओरा है पूरा गिरनार का, और ओरा से मुझे याद है कि जब योग करते हैं तो हमारे शरीर के बाहर भी एक आवरण रहता है जो दिखता नहीं है। दिखता जो कोई नहीं है। योगी पुरुष होते हैं तो उसके पीछे ऐसे चक्र बन जाता है। तो ये योग के द्वारा बनता है या साधना के द्वारा बनता है? देखो जो साधु है ना, वो जल्दी किसी को पता ही ना चलने देवे। जी जैसे मैं रामगिरी के पास था 30 पंक्तियाँ पे, जी। तो सब ने सोचना तो रात को 12-1 बजे बाबा का हवन चालू हो जाना, रात को 12 रात 12-1 बजे बापू का हवन चालू हो जी। जाना। फिर क्यों? ये चीजें दिखाने की नहीं है। नहीं है साधु संत पर ये छुप के रहे। जी। ऐसे साधु संत छुप के रहते हैं। कैसे है कि जिसके पास तो कुछ है जी वो जाहिर होना नहीं चाहता, जी। और जिसके पास कुछ नहीं है वो बड़ा बनना चाहता है। वो जाहिर होना चाहता है कि मेरे को मानो। जी कैसे? जैसे किसी के पास 50,000 रुपया है, जी तो वो आधे गांव को बोलता है ब्याज पे लेने हैं। जी जी। 50,000 रुपये में 50,000 रुपया ही है उसके पास, तो वो बोलता है 50,000 है, ब्याज पे लेने जी। हैं। और जिसके पास करोड़ों है वो तो किसी को खबर ही ना होने दे दे कि मेरे पास है कि नहीं है। या, ऐसे ही फकीरी है, इसमें कुछ बढ़ना नहीं है, इसमें घटना ही है। ये से जो आप बता रहे हैं कि जैसे शुद्ध कोटि के संत जिसे कहते हैं, वो जो लोगों के बीच में भी रहते हैं तो भी मालूम नहीं पड़ता। मालूम होने ही नहीं ना देवे वो। वैसे गिरनार में भी कहते थे पहले कि गुफाओं में साधु संत हाँ, विराजमान। अभी भी भरी पड़ी है गुफाएं। अभी भी इधर हमारे गुरु महाराज जहाँ पे उन्होंने तप किया, कलंदरी गुफा है, कालिंदरी गुफा। कलंदरी गुफा इधर गिरनार में, जहाँ पे हमारे बड़े गुरुभाई ये सारा साधु समाज जाने, 2-2 सींग खड़े रहे। सिंह खड़े रहते हाँ, 2-2 सींग खड़े रहे पानी में। आज की तारीख में भी उधर जाना मुहाल है। वो तो अभी तो फॉरेस्ट में है तो इसलिए नहीं जाने देते। ऐसा है कि वो पहुंच ही नहीं पाते पहुँच ही नहीं पाते, इतनी दूर पड़ जाए कालिंदरी गुफा। कलंदरी गुफा। और वहाँ जो है गुरु महाराज ने 12 के 18 साल एक खोपड़ी में चावल उबाल के खाए। एक खोपड़ी में चावल उबाल उबाल के। 18 साल तक खाए कलंदरी पे। वो और कलंदरी से नीचे आए ये सीधा यहाँ पे कश्मीरी बापू की जहाँ जगह है, वो दूना भी बाबा बनारसी दास का ही। वो वहाँ पे जो धुना है वो बाबा जी ने बनाया था। वाह। फिर वो दे के गुरु महाराज इधर आगे प्रकटेश्वर में। यहाँ पर तब कुछ था या फिर ना, तब क्या था, ये दूना बनाया बाबा ने, यहाँ जंगल ही था? ऐसे ही जंगल ही था ऐसे। जंगल ही था। हाँ, और एक भी कोई स्थान या फिर कुछ नहीं है पीछे, जैसे जंगल है वैसे ही जंगल ऐसे ही था। जंगल था। तो फिर इसकी स्थापना हुई, फिर जो है आगे मंदिर की हुई। जी। तो अभी भी गिरनार में कई सारे जो साधु संत जो भजन कर रहे हैं तो वैसे हो गए, तो उसको कैसे मालूम पड़ता है महाराज जी कि वो भी अभी भजन करते हैं? तो उसकी कोई एनर्जी मिलती है या फिर कोई संदेश मिलता है, ऐसा कुछ होता है महाराज पता क्या है, जी? तमें लोग साधु के पास जाओ, जी अगर वहाँ जाके तुमको शांति ना मिले, जी मन की तरास कम ना हो, जी धर्म करने को जी ना चाहे, जी मन में दया ना आए, जी
तो इससे भले तो तुम अपने घर में ही हो, साधु के बढ़िया। पास जाके क्या करने का। जी, कर्म करने का, धर्म करने का मन हो, मन में शुद्ध भावना आए, धर्म करने को जी चाहे, जी मन में दया जागे, धर्म जागे, भावना जागे, हैं, जी महाराज जी, तो फिर उसको फायदा ना, उसके मन को भी सुकून मिले, ठंडक पहुँचे, जी तो उसका हक बनता साधु के पास जाने का। अगर साधु के पास जाके भी उसको त्रास मिले तो वो अपने घर में ही ठीक है, बढ़िया फिर उसने क्या करने का उधर जाके। जी बस अब तो मैं ये दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे देश की रूपरेखा बदल रही है, जी साधु समाज और योग का प्रचार, जी, रामलला का मंदिर, ये सब कुछ जो है योगी जी की देन है। जी तो जनता को चाहिए जी, कि 2040 में इनको 2024 में इनको धूमधाम से जिताए, ताकि देश का उद्धार हो गए। वाह महाराज जी वाह। और क्या, क्योंकि ये साधु संतों के हक में है जी, ना। जी, और वो कुछ लोगों के और वो खुद ही साधु है। लोक कल्याण के बारे में सब कर रहे हैं, इसलिए कभी उधर वो क्या नाम है जो हिमालय में केदारनाथ की गुफा में जा रहा है मोदी, कभी कहाँ जा रहा जी है। अब उसने क्या लेना या योगी ने क्या लेना, उनके कौन से कोई बच्चे रो रहे हैं। जी सिर्फ काय के लिए, हिंदू तत्व के लिए, ताकि हिंदुओं को सुरक्षा भी मिले और इज्जत से रहे वे भी। जी, आखिर मैं यही बोलता हूँ कि नानक, गोरख, दत्त, कबीरा, एक पंथ और 4 शरीरा। वाह महाराज जी वाह, इसमें तो पूरा हिंदू धर्म आ गया। वाह महाराज जी वाह, ये जो लाइन दिल को छू के चली गई, अंदर उतर गई। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत बढ़िया लोगों को योग के बारे में, गिरनार के बारे में और सभी जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी और आपसे मिलकर खूब आनंद हुआ। तो वैसे ही हमारा वीडियो खत्म करते हैं। તો ખૂબ જ સુંદર આપણે સંવાદ સાંભળ્યો બાપુ સાથે. બાપુ પંજાબથી આવ્યા છે અને આખો ગિરનારમાં ઘણા બધા વર્ષો સુધી ભજન કર્યું છે. ગિરનારની તળેટીલે ભવનાથ સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં તો એવા સંતના આપણે દર્શન કર્યા, આખી જગ્યા જોઈ, એમના ઉપલબ્ધિઓ જે છે એ આપણે જોઈ, એમનો કેવું કાર્યક્ષેત્ર છે, એમના ગુરુજી વિશે ઘણી બધી આપણે વાતો કરી. વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો અને આવી રીતે બની રહેજો ગિરનારી ભૂમિઓ યુટ્યુબ ચેનલમાં. નવી નવી જગ્યા, નવી માહિતી લાવતો રહીશ. હું છું નીરવ હિન્દુ. ગિરનારી ભૂમિઓ ફરીથી મળીએ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી હર ભોલે, મથા ટેક, જય ગિરનારી, આદેશ આદેશ અલખ નિરંજન, નમો નારાયણ.